ਕੱਟਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ Dear students, good morning to everybody. Now I request to you, coronavirus is spreading day by day. Please stay at home, be safe, be happy. Please wash your hand regularly and always wear the mask at public places and obey the instructions of the government or local administration. जिथे ਆਪਾਂ कोरोना वायरस ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਆਵਰ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਟੁਡੇ programmable logic controllers and microcontrollers. The name of the subject programmable logic controller with PLCs and microcontrollers. So introduction to PLC. Now first of all we should know the importance of this PLC. What PLC is? PLC is an industrial digital computer which has been recognized and adapted for control of manufacturing process such as assembly line or router devices or any activation that require high reliability, ease of programming and process for diagnosis expert. ये मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज कंप्यूटर. You know computer is an electronic machine that receive data or program and input and then some output information after processing the data. Now day by day the speed of the machines become high. Now the speed of the machine, your electrical student, depends on the switching action. Speed of any machine may be computer, maybe or any other electronic machine, it depends on the switching action. Now what is switch? Switch is basically a device which can turn on or off the power or current to any circuit. Logic conversion will take place only when there is flowing of current to any circuit. So उस करंट को स्विच ऑन करना, टर्न ऑन करना या टर्न ऑफ करना, इट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्विच. ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ that switches was the manual operated switch or mechanical switch. All these switches, so this is the single wave cluster switch. This switch is the mechanical or manual operated switch because ये switch ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, mechanical ਵੀ ਮੂਵ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਮੇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नॉइस भी क्रिएट हो रही है, आवाज़ आ रही है, ये स्पार्किंग भी होगी. तो जे मैं मैक्सिमम ऑपरेट करा एक सेकंड के ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਜਾਂ 4 ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ऑपरेट नहीं कर सकता. सो जितने भी सारे वो स्विचेस है, चाहे वो सिंगल वे है, 2 वे है, जियो स्विचेस है, PPIC, DPIC जहाँ साढ़े को इंटरमीडिएट स्विचेस है, 2 वे स्विचेस है, ऑल दी switches are the manual operated or mechanical switches. Speed of the switches is very low and these switches are the bulky, they create noise pollution, they create aggression or sparking ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ switch ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਥੋੜੀ ਫਾਸਟ ਹੋਈ then we use electromagnetic or electromechanical switches. Electromechanical switches ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ switches ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ. these switches are operated by the muscular energy. Now these switches are operated by the help of electrical. For example relay ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ then it become electromagnet. एक साढ़े को परमानेंट मैग्नेट होता है, चुंबक
आर्टिफिशियल मैग्नेटिक जो भी असं किसी कोयल में सप्लाई देने वो सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड जो सेट हो जाता सो दैन इट कम इलैक्ट्रोमैगनेट मैगनेट का की काम है वो लोहे को अपने वाल खिंच लेंगे सो असं इस तरह का मैकेनिज्म सेट करते हैं वो जो मैगनेटाइज होती है एक प्लंजर को अपने वाल खिंच लेती है जो नॉर्मली ओपन कंटैक्ट होते हैं क्लोज हो जाते हैं जो क्लोज कंटैक्ट होते हैं वो साढ़े ओपन सो मैनुअली ऑपरेट नहीं होती इट ऑपरेटेड बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो दैन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो मैकेनिकल स्विच मैकेनिकल भी मूवमेंट इलेक्ट्रो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूज होती है सो ये जो स्विच है इस स्विच नालों फास्ट है जो असी नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट कहते लगा दें दैन इट बिकम कंडक्टर जो प्लंजर वो अपने वाल खिंचेगी जो नॉर्मली ऊपर कंडक्टर क्लोज हो जाए क्लोज होकर साढ़े ओपन हो नाउ स्पीड ऑफ दिस स्विच इज मच मोर देन दिस वी कैन ऑपरेट अप टू 100 ऑपरेशन पर सेकंड अप टू 100 ऑपरेशन पर सेकंड सो ये स्विचेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕਈ ਵਾਰ फायर इंसीडेंट्स जिन्हें भी इंडस्ट्री के एग्रीकल्चर फील्ड के साढ़े जिन्हें साढ़े डोमेस्टिक या और साढ़े को कमर्शियल अदारे हो गया असी जो देखते हैं कि अग लग के बड़ा नुकसान होता क्यों लगी ड्यू टू स्पार्किंग सो ये भी स्पार्किंग होती है ये भी बी एंड के बनती है सो ये करके ये भी नॉइस जी स्पीड जरूर ये ज़्यादा है पर वो भी प्रॉब्लम ये बल्कि भी है अजकल जी परफेक्ट टैक्नोलॉजी का जमाना सो ये बल्कि भारी होती है ये कॉस्ट भी ज़्यादा आ तो फिर लॉसेस भी ज़्यादा लॉसेस कि होंगे जिदा साड़ी कोई कोयल आ वो जी साढ़े को कंडक्टर वैक्टर सफर करती है वो करके लॉसेस होते हैं ये स्लो भी दैन हम जी साड़ी नवी रेगूलेशन आई है दैट इज ओनली ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक स्विच इलेक्ट्रॉनिक स्विच भी they are made of semiconductor material may be transistor will be done you can use diode band switch you can use transistor switch so ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ works as an amplifier everybody know transistor works as an amplifier when it is in the active region transistor works as MOSFET when it is in the cut-off region and transistor works as MOSFET when it is in the saturation region. So very important aspect is transistor is used as switch. We can increase the speed of many machines. This is a computer बनाया गया. जब ये सारी fast machines है गया the speed of the computer speed of any electronic machine depends on the switching action. जितनी एनर्जी तेजी के नाल असी पूरे ऑन ऑफ कर सकते हैं उस स्विचिंग एक्शन के नाल ही उस मशीन की जो स्पीड है आजकल बच्चों को टॉलरेंस पेशेंस नहीं है बच्चे इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं सो जिन्हें मशीन फास्ट होएगी बंदे की कॉस्ट ज़्यादा होगी सो आजकल जो स्विच का बैटरी का इलेक्ट्रॉनिक स्विच पीएलसी बेसिकली की है पहला मेरे असी पहला असी इंडस्ट्री कंट्रोल करते सी इंडस्ट्री रिलेज वगैरह यूज करके कंडक्टर यूज करके मोटर की एक्टिविटीज देना अच्छी कंट्रोल करते आजकल पीएलसी आ गया मतलब 10 तक कंप्लीट कर रही सो बेसिकली स्विच जो रखते रिलेज का रिप्लेस करता इलेक्ट्रॉनिक स्विच इस गल दिमाग रखना ना रिलेज और इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेज का रिप्लेस करता इलेक्ट्रॉनिक स्विच कुछ ये मेरिट्स है कुछ ये डीमेरिट्स है क्योंकि रिलेज के अपने मेरिट्स है या हैवी वोल्टेज को रेस्पेक्ट कर लेंगे ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੇਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੋ ਪੀਐਲਸੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਏਬਲ ਲੌਜਿਕ ਕੰਟਰੋਲ what do you mean by program mean set of instructions given to the machine ਅਸੀਂ ਇੱਕ set of instructions ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ sequence wise ਉਹ ਤੋਂ ਰੀਡ ਕਰਦਾ accordingly ਉਹਦੇ ਤੇ machine ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਸਟਾਪ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਅਸੀਂ ਸੀ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PLC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਡਿਵਾਈਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। There is another term that is called logic. Logic means तर्कबाजी करनी, दलीलबाजी। Control means you know everybody know about control. उस चीज़ को ਅਸੀਂ control ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। Program level logic control. Now what is the difference between calculation and computation? Calculation means only arithmetic operations, addition, subtraction, multiplication, division, etc. All these are the arithmetic operations. Calculator only perform that calculation, but when we add logic, then it becomes computation. Calculation is only simple arithmetic calculation, but when we add logic, that becomes computation. So computer derived from that when logic involved, less than, greater than, equal to, then when logic involved, then it becomes computer or computation. Microcontroller or microprocessor. Microprocessor means when we process the instructions at micro level, बहुत बारीकी ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ। So now computer, what is computer? Computer is basically the copy of the human body. ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਿਆ, ਬੰਦਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਛੀ ਦੇਖਿਆ, ਐਰੋਪਲੇਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੱਛੀ ਤਰਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਬਮਰਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਪੀ ਆਫ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾ ਲਏ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਣਾ? ਨਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦਾ। What are the merits of computer over human body? ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਤੇ ਦੇਖੀ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਪੀਡ। ਅਗਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਇਆ ਦੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਸਪੀਡ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਮਰੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਆ, ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਮਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਪੀਡ, second one is the memory, third one is the accuracy। कोई भी चीज़ जी कंप्यूटराइज डिजाइन होने कैर कैमरे से देखते हैं वो जी पढ़ा तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। सो असं जी चीज़ पेंटिंग हैंडक्राफ्ट जो वो चीज़ा लैपटॉप होंगे, पर जी चीज़ा कंप्यूटर के राइज बनी हुई वो चीज़ सारी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगी। दैन कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कंसिस्टेंसी भी जिदा बंदा एक काम करता वो कितना चर फील्ड के कितना चर मैदान के खड़ा रहता, खड़िया रहता। वह कारण कि बंदे ने खाना पीना भी है, बंदे ने रेस्ट भी करनी है, थोड़ी देर बाद बंदा जो थक जाता वो इरीटेट हो जाता। सो वो लगातार काम नहीं कर सकता। पर जो साडा कंप्यूटर है कोई भी मशीन है उन्होंने ਉਹਦਾ एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਭਰ ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮੈਂ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ impartial। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਆ,
वो कदे ना कदे पार्शल हो जाता, भेदभाव करता, कोई काला आ गोरा आ जाए मेरा कोई लड़का आ मेरा दुश्मन आ मेरा जा रहा। सो ये हमेशा इस भेदभाव क्या रहता जिहदे नाल जिहड़ा साडा काम है बायस हो जाता। पर कंप्यूटर अगर पास मार्क्स 40% पास मार्क्स है गया 39 है तो वो फेल करेगा, पास नहीं करेगा। जो एक्चुअल पोजीशन है एक किसी के नाल पास है नहीं अगर चाहे चाहे तो काम करे बुरा काम करे बुरा काम करे काला काम करे कोई भी गलत काम करे किसी को भी मना नहीं करेगा। ह्यूमन बॉडी को एक आ गया। सो ये 5 डिसिप्लिन मेमोरी ਉਹਦੀ एक्यूरेसी ਉਹਦੀ कंसिस्टेंसी इंपार्शियल। पर कंप्यूटर का डीमैक्स मेन की है ये भी ध्यान रखना ये कोई भी एरिया फीलिंग्स भी है कोई भी अपने इमोशंस नहीं है। इट इज़ मैन मेड मशीन जो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ जो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ जो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ अगर ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਡੀਗੋ ਗਾਰਬੇਜ ਇਨ ਗਾਰਬੇਜ ਆਊਟ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੂੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੰਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਗੰਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਦੀ ਗਲਤੀ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ 39 ਮਾਰਕਸ ਆ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਉਹ 40 ਕਰ ਦੇਗਾ लेकिन कंप्यूटर 40 नहीं करता क्योंकि ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਇਆ ਪੀਐਲਸੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੀਂ ਪੀਐਲਸੀ ਕੀ ਹੈ। ਪੀਐਲਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ऑन चिप इंडस्ट्रीयल कंप्यूटर। ओके मशीन जोड़ा हम कंप्यूटर है मैं तो पहला भी दसिया कंप्यूटर इज द कॉपी ऑफ द ह्यूमन बॉडी कितना वर्क करता है इस चीज़ को ध्यान रखना। साड़ी जी ह्यूमन बॉडी आ साढ़े को सेंसिंग ऑर्गन सेंसिंग ऑर्गन भी असी अखा नाल देखते हैं तो जी साड़ी इनफॉर्मेशन कितने पहुँचती है ब्रेन असी देखते भी बंदा कौन खड़ा जो कि चीज़ रखी है वो साड़ी ऑप्टिकल रखी जी वर्ड लगे ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਂਸਿੰਗ ਆਰਗਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਂਸ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਬਾਈ ਲੁਕਿੰਗ ਬਾਈ ਹੀਅਰਿੰਗ। ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਨੇ ਵੀ ਸੈਂਸਿੰਗ ਆਰਗਨ ਆ ये साउंड एनर्जी को सेंस करते हैं ये ऑप्टिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी को सेंस करते। देन स्मेलिंग जेड़ा साडा नोज है सानू पता लग जाता कि फूड स्मैल बैड स्मैल है या कोई फ्रेगरेंस आ रही है महक आ रहा है मस्ट आ रहा। सो स्मेलिंग साडा नाक जेड़ा वो सेंस करते हैं। देन टेस्टिंग टेस्ट जेड़ी साडी जीभ है ये केमिकल एनर्जी को खट्टा आया कौड़ा आया मिठा आया। ठीक है देन टचिंग बहुत इंपॉर्टेंट। टचिंग में साड़ी जी कहने हैं असं हाथ ना किसी चीज़ को छूने असं कहने हार्ड है सॉफ्ट है चाहे गर्म है सर्द है। ठीक है सो ये 5 जी साढ़े को सेंसिंग ऑर्गन है ये साड़ी ब्रेन इनपुट पर जाती पहली इंफॉर्मेशन साढ़े ब्रेन में मिलती है साढ़े ब्रेन में पता लगता। सो इसी तरह जोड़ा साढ़ा कंप्यूटर वो पहला कोई भी मशीन पहले इनपुट सेंसिंग डिवाइसिस असं उस यूनिट को लगता करो पहले इनपुट यूनिट ये की होगा जे साढ़े को सारे किसी बच्चे कंप्यूटर यूज करते हो वो इनपुट की है असी कीबोर्ड के नाल इनपुट असी माउस नाल इनपुट देने असी स्कैनर नाल इनपुट देने असी माइक नाल इनपुट देने बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी है। माइक या साउंड एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जे साढ़े को कोई स्कैनर है इलेक्ट्रिकल सॉरी ऑप्टिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। जे साढ़े को टाइप राइटर कीबोर्ड हैगा वो मैकेनिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है।
इस तरह इस पार्ट असी उस ह्यूमन बॉडी के नकल मार के जिदा साढ़े कान नक या साड़ी अखा काम करदियाँ उस तरह असी इधर भी सेंसिंग ऑर्गन जेह्ड़े दैन CPU सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट जे असी कंपेयर करिए इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर जिदा साडा ब्रेन है दिमाग है ब्रेन के तीन यूनिट होंगे आ ब्रेन के सारी CPU होगा CPU सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट कहते हैं ये नोट कर लो ये है जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट अरिथमेटिक मीन सिंपल कैलकुलेशन लॉजिक मीन दलीलबाजी ये लॉजिकल गेट्स लगे हुए हैं जिसका बंदा डिसीजन लेंदा पहला बंदे की ब्रेन में इनपुट जाती है फिर उस बारे सोचते हैं सोच के जरा डिसीजन लेते हैं की करना चाहिए नहीं करना किस तरह करना सो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट देन सेकंड यूनिट इज द CPU कंट्रोल यूनिट जितना साढ़े ब्रेन के यूनिट होंगे जो साड़ी बॉडी को कंट्रोल करता है मैं जिस तरह वर्क कर रहा मैं मेरी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल कर रहा गाइड कर रहा मैं इधर जा रहा मैं बोर्ड से लिख रहा ठीक है क्या मैं किसी चीज़ को इस तरह कर रहा थर्ड यूनिट इज द मेमोरी दो तरह की मेमोरी होती है एक मेमोरी विजन ब्रेन है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਮਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ CPU ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ CPU ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ क्रिएट कर रहा दूसरा कंट्रोल यूनिट क्रिएट कर रहा तीसरा जरा से मेमोरी थोड़ी आदि थी ताकि सारा ब्रेन फिर असी सैकेंडरी मेमोरी भी बना लेने हैं जी कि जो मेमोरी साड़ी फुल हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है फिर असी उन्होंने सैकेंडरी स्टोरेज डिवाइसिस जिदा साड़ी पेन ड्राइव वगैरह हो या डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो या वो चीज़ा आएंगे सारी सारे को हार्ड डिस्क होएगा सोलर वगैरह फ्लॉपी वगैरह जैसे कंट्रोल करें देन बॉडी को चलाने वास्ते सब कुछ चाहिए असी रोटी पानी खाने असी अपनी डाइट लेते हैं वो साड़ी बॉडी को एनर्जी मिलती है अगर असी खावा पीवे नहीं तो बॉडी जी होगी बॉडी डेड हो जाएगी इसी तरह साड़ी पावर एनर्जी जी सो असी इनपुट यूनिट को भी एनर्जी दी CPU को भी एनर्जी दे रहे हैं असी आउटपुट यूनिट कौन इधरों इनपुट जा रहे हैं CPU प्रोसैस कर रहा जो होएगा वो साड़ी आउटपुट से नाउ देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस ये साड़ी को प्रोग्रामिंग डिवाइस है दिया मे बी साड़ी को कोई जैसे टाइप का प्रोग्राम है जैसे इंस्ट्रक्शंस दे दिए असी इन्हों CPU को दे देना तो आउटपुट दिया जो चीज़ इधरों असी प्रोग्राम देवांगे प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देवांगे काम कितना स्टार्ट करना जो इस तरह होगा इस तरह करना इस तरह होगा इस तरह करना इस तरह होगा इस तरह ठीक है उस तो बाद फिर असी उन्होंने जो साडा प्रोग्राम ठीक चलता फिर असी उन्होंने कोऑर्डिनेटर को डाटा दें मेरा डाटा इज द रॉ मटेरियल फ्रॉम व्हिच वी कैन प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन डाटा हाउ फैक्ट्स एंड फिगर गेट इनटू द सिचुएशन प्रोडक्ट प्रॉब्लम पर जब डाटा प्रोसेस हो जाता then it become information there is lot of difference between data and information data is the raw material from which we can produce information जिस तरह से मटीरियल इकट्ठा करते हैं जो हलवाई बर्फी बनाता हो कि दूध लेगा शुगर लेगा और जो मटीरियल मैदा लेगा या जो कोई प्रोडक्ट रहेगा ड्राई फ्रूट रहेगा पर जो वो तैयार कर लेगा गैस के ऊपर या हीट के नाल फिर वो बंदे की बर्फी बन गई सो बाकी सारी जो आइटम्स है दैट इज द डाटा तो जो बाकी सारी कोई दैट इज द इंफॉर्मेशन या फॉर एग्जांपल तुम अपना एग्जाम दे रहे हो पेपर दे रहे हो तो इस वाली कॉलेज सैशनल भी असी लगाई हुई है वो चीज़ा लगिया प्रैक्टिकल के नंबर सैट बाद तुम पेपर पाओगे कोई किसी को कितने नंबर है कितने नंबर
वो सारा जो बोर्ड चलेगा दैट इज नॉट डेट। पर जी थोड़ी मार्कशीट जो डिटेल मार्क्स कार्ड आएगा दैट इज इन्फॉर्मेशन। वो एक एक चीज़ जी है पार्टिकुलर तरीके लिखी होगी केस बच्चे का की डिस्क्रिप्शन होगा की होगा पता। सो इन्फॉर्मेशन इज क्लियर डाटा इज नॉट क्लियर। तो वो जी साड़ी जो प्रोसैस आउटपुट है इनपुट तो बाद प्रोसैस होते थे आउटपुट और आउटपुट असं कहूँ दे रहे हैं ये लाइन का सिंबल या असं किसी को सप्लाई दे रहे हैं जहाँ वो सप्लाई मोटर में जा रही है इंस्ट्रक्शन सेंटर मोटर में जा रहे हैं जहाँ किसी लाइट में जा रहे हैं जहाँ किसी और। सो दिस यूनिट इज कॉल्ड इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस। दिस यूनिट इज कॉल्ड आउटपुट सेंसिंग डिवाइसेस। जितना सारा कंप्यूटर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ स्पीकर लगा होगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਨੀਟਰ लगा होगा आउटपुट ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ लगा होगा वो सारी चीज़ें आउटपुट डिवाइस जिदा साडा ब्रेन जिहड़ा हैगा वो सेंसिंग ऑर्गन तो इनपुट रिसीव करता उन्होंने प्रोसैस करता तो बाद गाइड किहनूं करेगा आउटपुट डिवाइसेस में। जिस तरह मेरा ब्रेन हूँ सोचा कुछ लिखना चाहता बोर्ड से लिखेगा कौन हाथ बोर्डा भी कॉपी कौन जाएगा मेरे पैर इसका मतलब जेडे मेरे हाथ पैर वो ऑर्गन किया दे आर द आउटपुट डिवाइसेस। सो कंप्यूटर के फिर ध्यान सुन लो मेन पार्ट के लिए इनपुट devices compared with our sensing organs of the human body, then CPU compared with the brain, then output devices compared with the output devices में साढ़े हाथ पैर है वो तो वैसे माइक स्पीकर है जहाँ हो साढ़े को जेडी output devices जैसे साढ़े मीटर वगैरह है वो चीज़ें पर ये तो PLC के लिए कैसे देते हैं उनका बात नहीं है जेडी साढ़े को मेन एनर्जी है दैट इज द पावर सप्लाई। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ DC ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਵੀ ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ CPU ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ वो बहुत ज़्यादा जगह भी है कॉस्ट भी ज़्यादा है इस करके कई बार सानू स्पैसिफिक डिवाइस चाहिए। ये जनरल हैगा ये टैक्स कैलकुलेट करते हैं विजुअल आउटपुट देखते हैं ये सब आउटपुट देते हैं विजुअल आउटपुट जाएगा ना टैक्स आउटपुट जाएगा पर जितना सारे कैलकुलेटर सिर्फ कैलकुलेशन PLC किया PLC एक छोटा कंप्यूटर है जो इंडस्ट्री वास्ते डिजाइन किया इंडस्ट्री के असी जिदा प्रोडक्ट बना रहे हैं कोई भी वो कन्वेयर बेल्ट चाहिए कन्वेयर बेल्ट जी अपने किसी भी गुड्स को समान लेके जा रही है सीक्वेंस वाइज वो ऑपरेशन हो रहे हैं। सो उन्होंने कौन कंट्रोल कर रहा पहला सब तो जी साड़ी पहला असं हॉस्पिटल का यूज करते अर्ली स्टेज में फिर असं मकैनिकल का यूज करना पे जो 20,000 होया सैकंड रेगुलेशन इंडस्ट्री चाहिए इंजन आ गए डीजल इंजन पेट्रोल इंजन सो सारा जानते हो उस तो बाद ना इंजन है रिप्लेस करता है फ्रॉम मोटर बेसिकली कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। सो असं इंडस्ट्री की एक्टिविटीज़ को प्रोडक्ट की एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं दी कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द मोटर की एक्टिविटी की है हाउ टू स्टार्ट द मोटर how to stop the motor, how to change the direction of the motor, how to control the speed of the motor। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਾਲਟ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ PLC ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਟਰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਹੇ ਲੇਥ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਕਸਪਰਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਲੇਵ ਐਂਡ ਜਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ PLC ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਐਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ which has been recognized the process and adapted for control of manufacturing process। कोई चीज़ जिदा कोई नट बोल्ट भी बना लिया पहले पीस को कटना
फिर असी वो थ्रेडिंग करनी या फिर ड्रिलिंग करनी, वो सारा जो मैनुफैक्चरिंग प्रोसैस है। सच है असैंबली लाइन जैसे जिदा कोई ट्रैक्टर बनता या रेल कोई फैक्ट्री कोच बनता, वो जी असैंबली लाइन होंगी है, पहला ये कि चीज़ फिट करनी, फिर नैक्सट करना, फिर वो चीज़ फिट करनी, इस तरह कन्वेयर बेल्ट में लगे जाए। मैनुफैक्चरिंग सच है असैंबली लाइन और रोबोटिक डिवाइसिस अजकल जी समाना देखो, मैं पहला दसिया तुहानू सब तो पहला असी मुस्कुलर नादी यूज करते सी, बंदे जो तकड़े होंगे सी असी एनीमल्स यूज करते सी, हाथी घोड़े भी यूज करते सी, उस वेले जी रेगूलेशन आई ज़्यादा एग्रीकल्चर सैक्टर से आई, फिर जो मैं दसिया 20,000 हो गया, फिर असी मैकेनिकल नादी यूज करना पाया, जी साड़ी ज़्यादा रेगूलेशन से दैट वाज इन द इंडस्ट्री। फिर इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का योग आ गया, सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, मोबाइल आ गया, आजकल गूगल का जमाना, इंटरनेट का जमाना आ गया, साढ़े कंप्यूटर आ गए। सो थर्ड रेवोल्यूशन जी जिम्मेदारी है जिंदा कम्युनिकेशन या इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहला बंदा थोड़ा तकड़ा होंदा सी, असीं उहनूं कहंदे टेस्ट पास सिपाही, जिहड़ा परफेक्ट होंदा सी वो सिपाही करदा सी, उहदा बोल बाला होंदा सी। फिर बंदा इंटैलीजेंट हो गया, फिर इंटैलीजेंट बंदे का बोल बाला, फिर जिहड़ा बंदा सी वो जलीक हो गया, वो कहंदे मशीन गड्डी दे सारे मुकाबले तेरी कार दे विच जां तेरे मोबाइल दे विच की एडिशनल इहदे फीचर है, सो जिहदे विच असीं कोई भी चीज़ लैंदे हां जिहदे फीचर ज़्यादा होंगे अच्छे होंगे असीं वो चीज़ खरीदते हैं। सो जलीकनेस होगी साडी नहरा पन्ना गया पक्का हुण जिहड़ा जमाना है वो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस, नाउ टाइम इज ऑफ आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस, असीं आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस सानूं जा रहे हैं, तो बंदा की बन गया स्मार्ट। नाउ वी आर यूजिंग इलैक्ट्रिकल एनर्जी कोई भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, असीं लाइट को सेंस कर रहे हैं, आजकल बड़े स्मार्ट सेंसर आ गए, ऑटोमेशन। हुण जिहड़ी मेन चीज़ आई है दैट इज द ऑटोमेशन, ऑटोमेशन सब कुछ सारे स्मार्ट हो गए। आजकल हार्ड वर्क की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, स्मार्ट वर्क की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो पीएलसी साडा वही करता। सो स्मार्टनेस किस तरह आई है, जरा साडा स्विच सी वो उसी के स्विच है चेंज करना, इलेक्ट्रॉनिक स्विच किया, ट्रांजिस्टर स्पीड ज़्यादा, मतलब पहला दसिया। फिर कंपैक्ट टेक्नोलॉजी का जमाना, कंपैक्टनेस आई, साइज छोटे छोटा हो गया, सॉलिड स्टेट आ गई है, ये जो साडा कॉस्ट घट गई, सो घट जगह की होती है, इस करके असं ज़्यादा जो स्विचेज यूज कर सकते हैं। सो वो करके जी साडी PLC है वो सेम